तारीफ और उसकी सताइश करते हुए खुदा के फाते नाम में आप सब की सलामती मकसूद है, और खुदा का जलाल यकीनन आप सब लोगों पर कायम दायम। और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज की ये इंतहाई खूबसूरत सुबह खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम उसके हजूर में हाजिर हों, उससे इज़्ज़त और जलाल दें और तमाम तर सिजदे उसी के हजूर गुजराने जाएं। खुदा की तारीफ हो। और आज मेरे दोस्तों खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि संडे के बाद फिर से हम खुदा के तारीफ के लिए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इस मॉर्निंग डिवोशन में फिर से हाजिर हैं। खुदा का जलाल आप लोगों के साथ कायम और दायम रहे। और मैं खुदा का खादिम पादरी सलमान यूसुफ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करते हुए आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूँ। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और अपने दिन का आगाज खुदा के जलाली और बाबरकत नाम के वसीले से करें। प्रेज लॉर्ड। आइए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। आसमान ज़मीन के खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू अजीम व कद्दूस है, तू जलाल का बादशाह है। और खुदा देख, जब हम तेरे हजूर में हाजिर हैं और खुदा तुझे इज़्ज़त व जलाल देना चाहते हैं, तो अपने इस सुबह का आगाज़ हम तेरे पाक और ख़ूबसूरत नाम के वसीले से करते हैं, ताकि ये दिन हमारी ज़िंदगी में कामयाबियों और कामरानियों का दिन ठहरे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। प्रेज लॉर्ड। और खुदा की प्रस्तुति से उसकी ताज़ीम हो। और दोस्तों वक्त है कि हम मिलकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और बड़ा ही एक खूबसूरत ज़बूर, जो रूह परवर ज़बूर गर्दाना जाता है, और खुदा की तारीफ़ करते हैं। और मुझे भी ज़ाती तौर पर यह ज़बूर और इसके अल्फाज बहुत पसंद हैं। ज़बूर नंबर 121वां। अखियाँ चुकना हम मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नू पुकारा, मेरी मदद नू रब अपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। और मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। क्वायर हमारे साथ मौजूद है, क्वायर के साथ मिलके खुदा की ताज़ीम करेंगे। प्रेज लॉर्ड। Yeah.
تعریف کرتے ہیں دوستو آج کے اس خوبصورت زبور کے لیے جو کوائر کے ساتھ مل کر ہم نے گایا، اور اب وقت ہے کہ خدا ان کے بزرگ کلام کی تلاوت کی طرف بڑھیں، اور آج ہمارے ساتھ افاظ موجود ہیں، اور افاظ آج کے زندہ پاک کلام کی تلاوت ہم تک پہنچائیں گے۔ جی افاظ۔ آج کی تلاوت خدا کے پاک کلام میں سے زبور کی کتاب 119 زبور، اس کی پہلی آیت۔ مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، جو خداوند کی شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ بے شک خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت رہے، اور آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ زندہ قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں اور خدا ان تو سے التجا کرتے ہیں کہ تو اپنی سمجھ، اپنی تنائی، اپنی دانش اور اپنی وزڈم سے ہم سبوں کو سیر کر، تاکہ تیرا جلال ہماری زندگیوں میں قائم و دائم رہے اور خدا ان تیری برکت ہم پر ٹھہری رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ پریز لارڈ، خدا ان کی تعریف ہو۔ اور زبور نمبر 119واں، اور دوستو جس کی تلاوت ابھی ہمارے لیے کی گئی، اور حروف تہجی یعنی عبرانی حروف تہجی کے مطابق لکھا گیا یہ زبور اپنے اندر بہت گہرے مطالب قدم قدم پر سموئے ہوئے ہیں، اور جس وقت آج اس کا آغاز ہے اور اس کی پہلی آیت کو ہم نے سنا اور تلاوت کیا، تو یہاں پر خداوند کے کلام میں کیا بات تحریر کی گئی کہ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کون شخص مبارک ہے کہ جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے، جو اس کے کلام پر غور کرتا ہے، جو اس کے کلام سے اپنا رشتہ استوار کرتا چلا جاتا ہے۔ اور آج خداوند کے زندہ پاک کلام کی روح سے جب ہم دیکھیں تو وہ برکات جن کا وعدہ خدا نے زندہ کلام میں کیا ہے، کن کو وہ برکات حاصل ہوتی ہیں کہ جو خداوند کے کلام پر عمل کرتے ہیں، جو خداوند کے کلام پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ خدا ان کا جلال بھی انہی پر ٹھہرتا ہے، اور ان گنت رحمتوں اور برکتوں اور بہت ساری بلیسنگ سے خدا ان کو شاد رکھتا ہے۔ دوستو اسی طرح ہمارے چوگرد ایسے بھی لوگوں کی ایک گروہ آپ کو دکھائی دے گی جو کسی بھی قانون، کسی بھی آئین میں رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام حاکمیت کا سرچشمہ صرف خدا بزرگ و واحد کی ذات ہے، اور جب وہ حاکمیت اعلیٰ سے منور ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے قانون بنائیں گے اور خدا کے کلام سے منحرف ہوں گے، اس کی شریعت سے اپنے آپ کو دور کریں گے، اور اس کے کلام اقدس پر اگر ہماری توجہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ انسان جس کی عقل محدود ہے، جس کے بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی راست نہیں ہو سکتے، کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ قوانین برحق نہیں ہو سکتے۔ برحق ذات ہے تو صرف خدا کی۔ اور یاد رکھیے کہ اگر ہم بائبل مقدس کے آئین اور اس کے کلام کے حصوں کو اگر رد کر کے اپنی ایک نئی سوچ کا اختراع کر لیں، تو یقیناً ہماری اپنی سوچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فلا ضرور موجود رہتا ہے۔ اور آج میرے دوستو جس وقت ہم خدا کے کلام کو دیکھیں تو یہ واضح ثبوت ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم خدا کے کلام کے مد مقابل اپنی سوچ کو لے کر آ جائیں اور اپنی سوچ کے مطابق ایکٹ کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً انسان اس سے دکھ ہی اٹھاتا ہے، نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور حقیقی خوشی اور کامل رفتاری جو ہے وہ کبھی اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ اور آج خدا ان کے بزرگ کلام کو جب بغور ہم اس پر توجہ لگائے ہوئے ہیں تو خدا ان کا کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ خداوند کی شریعت اور اس کے قوانین سب برحق اور راست ہیں، اور راست جب قوانین کو چھوڑیں گے تو یقیناً زندگی میں دکھ اور تنگی اور تکلیف اور بیماری اور تنگ دستی اور طرح طرح کے مسائل ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ بے شک ہم جوان ہوں یا بچے ہوں، ہر حال میں ہمیں خداوند کی شریعت کی تکمیل کرنی ہے، ہر حال میں ہمیں خداوند کے کلام اقدس پر اپنی توجہ لگا کر اس کے موافق زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو
पीछे छोड़ देते हैं, जब उसे रद्द कर देते हैं, तो खुदा का कहर शदीद भड़कता है। और आज दोस्तों खुदा उनके बुजुर्ग कलाम के हवाले से देखें कि जो जान खुदावन के जिंदा कलाम के मुआफिक अमल लाती है, तो फिर दोस्तों उसके लिए बख्शिश और उसके लिए बरकत के दरवाजे खुदा आसमान से खोल देता है। और अगर आप खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से देखें, याकूब के वसीले से लिखा गया आम खत जो है, मुकद्दस याकूब ने जो खत तहरीर किया, उसके पहले बाब की 17वीं आयत, और खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल ईमान ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदा के कलाम पर अमल पैरा होकर अपनी जिंदगी बसर करते हैं, तो नूरों के बाप से जो कामिल इनाम हमें हासिल होता है, उस इनाम की फजीलत दुनिया को अगर आप बेच दें तो भी आप उसकी फजीलत को, उस इनाम की फजीलत को पूरा नहीं कर पाएंगे। वो इस कदर बेशकीमती इनाम होते हैं। और आज मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के कलाम को याद रखें कि रद्द करते हैं, तो फिर जिंदगी में बिगाड़ पैदा होता है, फिर जिंदगी में दुख और तकलीफ और मातम जन्म लेते हैं। लेकिन आज हमारे खुदावन यीशु मसीह का वो कॉल मेरे सामने आता है, जो उन्होंने मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान के 10वें बाब में फरमाया कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस वक्त हमारा निजात दहिंदा इसलिए जमीन पर आया कि हम कसरत की जिंदगी हासिल करें, तो कसरत की जिंदगी हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम खुदा के कलाम से बंधे रहें, हम खुदा के कलाम पर अपनी जिंदगी और अपनी तवज्जो को मरकूज किए रखें। क्योंकि याद रखिए कि खुदा का कलाम इस बात की शहादत देता है कि खुदा ने अपने हर नाम से ज्यादा अजमत, बड़ाई और इज्जत और जलाल जो है वो अपने कलाम को दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब कलाम खुदा हमारे हाथों में तहरीरी सूरत में मौजूद है, तो फिर ये दोस्तों हमारा फरीजा है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो लगाएं और उसके मुआफिक फल लाएं, उसके मुआफिक अमल करते चले जाएं, ताकि खुदावन की बुजुर्गी, उसका रहम, उसकी कुदरत, उसकी शफकत, सलामती और उसकी तरक्की और इस्तेहकाम हमारी जिंदगियों पर हमेशा कायम दायम रहे। और आज इस ख्याल के वसीले से दोस्तों मैं आप सब लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि अब फैसला करना हमारे अपने हाथ में है। आया कि हम इस खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, या इसको रद्द कर देते हैं। चॉइस आपके पास है, चॉइस आपके हाथ में है। हम क्या करना चाहते हैं? खुदा के कलाम से मुनहरिफ होंगे तो बर्बादी है, जिल्लत है। लेकिन अगर खुदा के कलाम से लिपटे रहेंगे तो फिर खुदा का वो कॉल जो उसने यशवा के लिए फरमाया कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे, तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी। तो आज मेरे भाई मेरी बहन, अगर इकबालमंदी की राह पर चलना चाहते हैं, अगर फातेह होना चाहते हैं अपनी जिंदगी के मामलात में, तो फिर खुदा के कलाम को अपने दिल में बसा लें और ज़बूर नवीस की तरह ये कह सकें कि ऐ खुदावन, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। प्रेज लॉर्ड। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरी अजमत और बड़ाई के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरी शफकत और तेरे रहम के लिए। और खुदा तुझसे इल्तिजा है कि तू अपने जिंदा पाक कलाम की समझ हमें अता फरमा। खुदा हमारे अंदर ये जज्बा पैदा कर कि तेरे कलाम का एहतराम करते हुए उसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा ठहराएं, ताकि रोज़ बरोज़ हमारी जिंदगियां यीशु के कामिल नाम के वसीले से तब्दील होती जाए, मसीह के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने वाले अजीज़ों कारब और बहन भाइयों के साथ होता रहे,
आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ और उसकी शुक्रगुजारी हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप सब लोगों की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी आरा हम तक पहुँचाते रहें और डिवोशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।